آپ سبھی دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن چینل اور میں ریاض احمد آپ سبوں کا ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اس ادبی ایجوکیشنل چینل پر۔ آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10th کے درخشاں حصہ دوم، جو آپ کے امتحان کے نظریے سے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور بنا اسکپ کے دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل آبجیکٹیو کوشچن جو آپ کو 50 مارک کے پوچھے جائیں گے امتحان میں، اور کل کوشچن ہوگا 100 مارک، اور اس میں سے آپ کو جو آسان سوالات رہیں گے ان میں سے 50 سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور آبجیکٹیو میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں مارک نہیں کٹتے ہیں اور آپ کو ایم آر شیٹ پہ بھرنا ہے۔ تو سوال جو آتا ہے 10ویں کے امتحان میں، آپ کو جو یہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ فہرست ہے، ان میں آپ کو 5 سے 7 سوال جو ہے آپ کو اس میں سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں، 5 سے 7 سوال۔ تو ہم اس کی تیاری کیسے کریں کہ اس میں 5 یا 7 سوال جو ہے ہم اس کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے چلیے ہم شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آبجیکٹیو کوشچن پہ چلیں گے۔ تو یہ فہرست ہے، فہرست میں حمد ہے، حمد ایک حمد ہے، اور یہ حمد لکھا ہے شبنم کمالی نے۔ حمد کس نے لکھا ہے؟ تو حمد لکھا ہے شبنم کمالی نے۔ حمد جو لکھا ہے یہ شبنم کمالی نے لکھا ہے، اور حمد کا نام جو ہے حمد خدائے عز و جل۔ حمد خدائے عز و جل یہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ شبنم کمالی نے لکھا ہے، اور یہ حمد خدائے عز و جل کیا ہے؟ تو یہ ایک حمد ہے، اور یہ جو ہے شعری صنف ہے۔ حمد یہ جو ہے ایک شعری صنف ہے۔ اس کے بعد یہ ہے حصہ نثر، اور حصہ نثر میں جو ہے آپ کو افسانہ، ناول، مضمون، انشائیہ، سفر نامہ، یہ سارے حصہ نثر میں آتے ہیں۔ تو حصہ نثر میں جو آپ کا یہ ٹاپک ہے یہ ہے افسانہ۔ افسانہ معنی کہانی، اور یہ آپ کے سامنے یہ 4 افسانے ہیں۔ پہلا ہے بھابھی جان۔ بھابھی جان افسانہ کس نے لکھا؟ تو یہ سہیل عظیم آبادی نے لکھا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے کہ افسانہ 4 افسانے ہیں۔ پہلا افسانہ ہے بھابھی جان، اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ تو سہیل عظیم آبادی نے لکھا ہے۔ دوسرا افسانہ ہے فرار۔ فرار کو لکھا ہے سید محمد محسن نے۔ فرار کو کس نے لکھا ہے؟ تو فرار کو لکھا ہے سید محمد محسن نے۔ تیسرا افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ۔ تیسرا افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ، اور اس کو لکھا ہے ڈاکٹر قمر جہاں نے۔ ڈاکٹر قمر جہاں۔ چوتھا افسانہ ہے آشیانہ، اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ تو اس کو لکھا ہے نگار عظیم نے۔ آشیانہ افسانہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ لکھا ہے نگار عظیم نے۔ تو افسانہ 4 افسانہ ہے۔ پہلا ہے بھابھی جان، اس کے بعد ہے فرار، افسانہ فرار، تیسرا ہوا کٹی ہوئی شاخ، اور چوتھا افسانہ جو ہے یہ ہے آشیانہ۔ اور بھابھی جان افسانہ کو لکھا ہے سہیل عظیم آبادی نے، فرار افسانہ کو لکھا ہے سید محمد محسن نے، اور کٹی ہوئی شاخ یہ افسانہ کو لکھا ہے ڈاکٹر قمر جہاں نے، اور چوتھا افسانہ جو ہے یہ ہے آشیانہ، اور آشیانہ کو لکھا ہے نگار عظیم نے۔ اس میں آپ کو آبجیکٹیو میں رائٹر کے نام چینج کر سکتے ہیں، جیسے بھابھی جان کے آگے آپ کو کوئی بھی آپشن دے سکتا ہے، اور ملانے کے لیے بول دے گا کہ 4 افسانہ نگار کا نام جو ہے سو دے دے گا، اور بھابھی جان دے دے گا، اس میں ایک سہیل عظیم آبادی رہے گا، آپ کو اس میں سے صحیح ٹک کرنا رہے گا کہ ان میں جو ہے بھابھی جان جو افسانہ ہے یہ کس نے لکھا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے مضمون۔ یہ مضمون جو ہے ٹوٹل 6 ہے۔ مضمون ٹوٹل 6 ہے۔ پہلا ہے عالمی حدت، اور یہ ماخوذ ہے، کہیں سے اخذ کیا گیا ہے۔ دوسرا مضمون جو ہے یہ ہے ریا۔ ریا کو لکھا ہے سر سید احمد خان نے۔ ریا کو کس نے لکھا ہے؟ تو ریا کو لکھا ہے سر سید احمد خان نے۔ تیسرا جو ہے مضمون ہے یہ ہے ادب کی پہچان۔
तो अदब की पहचान को लिखा किसने है? तो अदब की पहचान को लिखा है डॉक्टर अब्दुल मगनी ने, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने। चौथा जो है ये हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये भी माखूज़ है। पांचवा जो मजमून है ये है उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश। इसको लिखा है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान ने। उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान ने। और छठा है आर्यभट्ट और तिरिंगना, आर्यभट्ट और तिरिंगना, ये भी माखूज़ है। तो मजमून जो है 6 है टोटल। इनमें पहला है आलमी हिद्दत, दूसरा है रिया, तीसरा है अदब की पहचान, चौथा है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और पांचवा है उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश, और छठा है आर्यभट्ट और तिरिंगना। इसमें 3 जो है माखूज़ हैं। आलमी हिद्दत ये जो है एक माखूज़ है, हिंदुस्तानी आइन के मेमार ये भी जो है माखूज़ है, और आर्यभट्ट और तिरिंगना ये भी माखूज़ है। आपको अब इनमें से 3 मजमून के राइटर के नाम याद करने हैं। तो रिया जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है, अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मगनी की लिखी हुई है, और उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश ये प्रोफेसर लुत्फुर रहमान ने लिखा है। इसके बाद है नावल, और ये हिस्सा नस्र है, हिस्सा ये नसरी सिन्फ में शामिल है। और नावल में एक नावल है, यह है फ़हमीदा और मेजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। फ़हमीदा और मेजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। फ़हमीदा ये माँ है और उसकी जो मेजली बेटी है उसका नाम है हमीदा। तो फ़हमीदा और मेजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, इसको लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद ने। और आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहला नावल निगार जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद ही है, और डिप्टी नज़ीर अहमद ने 1869 ईस्वी में मिरतुल उरूस सबसे पहला नावल लिखा था। सबसे पहला नावल किसने लिखा? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने। और 1869 ईस्वी गालिब का वफ़ात भी है, गालिब का वफ़ात हुए थे, तो ये 1869 ईस्वी को वफ़ात पाई थी। तो नावल एक है फ़हमीदा और मेजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। इसके बाद है मकतूब निगारी, मतलब खतूत निगारी। 3 खतूत आपके दरख्शा में शामिल है। दरख्शा हिस्सा 2 जो है इसमें 3 खतूत शामिल किए गए हैं। पहला खतूत है सैयद शाह किरामत हुसैन किरामत हमदानी के नाम। इसको लिखा है असदुल्ला खां गालिब ने। सैयद शाह किरामत हुसैन किरामत हमदानी के नाम, इसको लिखा है असदुल्ला खां गालिब ने। दूसरा जो खतूत है वो है अपनी बेटी सोगरा के नाम, इसको लिखा है अब्दुल गफूर शाहबाज ने। दूसरा जो खतूत है ये है अपनी बेटी सोगरा के नाम, और इसको लिखा है अब्दुल गफूर शाहबाज ने। तीसरा जो खतूत है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, और इसको लिखा है मेहदी अफादी ने। तो 3 खतूत शामिल हो गए। पहला खतूत है सैयद शाह किरामत हुसैन किरामत हमदानी के नाम, इसको असदुल्ला खां गालिब ने लिखा है। दूसरा जो है अपनी बेटी सोगरा के नाम, तो अपनी बेटी सोगरा के नाम ये अब्दुल गफूर शाहबाज ने लिखा है। और तीसरा जो खतूत है वो है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, इसको लिखा है मेहदी अफादी ने। इसके बाद है इंटरव्यू, बेदी से इंटरव्यू, मतलब राजिंदर सिंह बेदी से इंटरव्यू, और ये भी माखूज़ है। इंटरव्यू एक इंटरव्यू है, और ये है बेदी से इंटरव्यू। बेदी का पूरा नाम जो है राजिंदर सिंह बेदी है। तो बेदी से इंटरव्यू ये माखूज़ है। अब हिस्सा शायरी। ये मुनासिर फितरत, ये नज़्म है, ये शेरी सिन्फ में शामिल है। तो मुनासिर फितरत ये चेकबिस्त ने लिखा है, मुनासिर फितरत चेकबिस्त ने लिखा है। दूसरा है इंडिया गेट, इसको जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा है। इंडिया गेट किसका लिखा हुआ है? तो ये जगन्नाथ आज़ाद का लिखा हुआ है। तीसरा है हम नौजवान हैं, ये परवेज़ शाहिदी की लिखी हुई है। परवेज़ शाहिदी, हम नौजवान हैं, परवेज़ शाहिदी ने लिखा है। बिजली का खंभा,
बिजली का खंभा किसने लिखा? तो निदा फाजली ने लिखा बिजली का खंभा। निदा फाजली की 2 नज़्म है इसमें शामिल है, एक है बिजली का खंभा और दूसरा है नज़्म बहुत आसान थी पहले। बिजली का खंभा और नज़्म बहुत आसान थी पहले किसने लिखा है? निदा फाजली ने लिखा है। खड़ा डिनर ये ज़रीफ़ाना मतलब कमज़ोर नज़्म है, ज़ईफ़ नज़्म जिसको कहते हैं। सैयद मोहम्मद जाफ़री ने लिखा है। खड़ा डिनर किसने लिखा? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री ने लिखा है। आपके ये 6 नज़्म भी हैं और 6 आपके क्या थे? 6 आपके अफ़साना थे। अफ़साना भी 6 थे और आपके नज़्म भी 6 हैं। नज़्म में मुनाज़िर फ़ितरत चेकबिस की लिखी हुई है। इंडिया गेट ये जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा है। हम नौजवान हैं परवेज़ शाहिदी ने लिखा है। बिजली का खंभा निदा फाजली ने लिखा। नज़्म बहुत आसान थी पहले ये भी निदा फाजली का लिखा हुआ है। तो खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफ़री ने लिखा है। मरसिया एक मरसिया है और वो भी असदुल्ला खां गालिब ने लिखा है। मरसिया एक है और ये आरिफ की मौत पर असदुल्ला खां गालिब ने ये मरसिया लिखा है। मसनबी मरसिया भी शेरी सिन्फ है, मरसिया भी शेरी सिन्फ में शामिल है और मसनबी भी शेरी सिन्फ में शामिल है। मसनबी आपके 3 मसनबी हैं, 3 जो है ये मसनबी है। तो ज़हर इश्क ये जो है शौक़ लखनवी की लिखी हुई है। ज़हर इश्क ये शौक़ लखनवी की लिखी हुई है और ये इक़्तबास है, पूरा मसनबी ये नहीं है, ये जो है मसनबी का इक़्तबास दिया गया है। दूसरा है गुलज़ार नसीम और इसको दयाशंकर नसीम ने लिखा है। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए कि गुलज़ार नसीम ये नसीम है तो दयाशंकर नसीम ने लिखा है, ये तो आपको याद हो जाएगा और ये मसनबी है। ज़हर इश्क ये शौक़ लखनवी की लिखी हुई मसनबी है। तीसरा जो मसनबी है ये है जज़्बे इश्क। तीसरा जो मसनबी है ये है जज़्बे इश्क। तो जज़्बे इश्क किसने लिखा? ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी ने लिखा और ये भी एक मसनबी है। तो 3 मसनबी हुए। ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक़ लखनवी ने लिखी है, गुलज़ार नसीम दयाशंकर नसीम का लिखा हुआ है और जज़्बे इश्क ये जो है ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी ने लिखा है। अब हम गज़ल पे आते हैं। गज़ल साअतें गुज़री जो गफ़लत में समझ ले खो गई, ये मुबारक असीम आबादी का लिखा हुआ है। गिर गए अफ़सोस किस किस तरह के, गिर गए अफ़सोस किस किस तरह की नज़र से क्या कहें, ये मुबारक असीम आबादी के लिखे। ये 2 जो है गज़ल ये जो है मुबारक असीम आबादी ने लिखा। साअतें गुज़री जो गफ़लत में समझ ले खो गई और दूसरा है गिर गए अफ़सोस किस किस तरह की नज़र से क्या कहें। अहमद फ़राज का भी जो है ये 2 गज़लें हैं। एक है दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, ये अहमद फ़राज ने लिखा। और तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, ये जो है अहमद फ़राज ने लिखा। और हसन नईम के भी 2 गज़ल शामिल हैं। क़ल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, क़ल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी। और दूसरा है फसाना ए गम का कोई गम गसार हो तो कहें। इसके बाद है गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह परवीन शाकिर और बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, ये भी गज़ल जो है ये 2 गज़ल शामिल है परवीन शाकिर के भी। और गए मौसम जो खिलते थे गुलाबों की तरह और बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, ये भी परवीन शाकिर की लिखी हुई है। इरफान सिद्दीकी इसकी भी 2 गज़ल शामिल है। ये दस्ते असाए मोजज़ा गर भी उसी का है, काम उसका शिकवे तन्हाई से क्या चलता है। तो इसकी भी 2 गज़लें शामिल है, एक ये है और दूसरा आपका ये है कि दस्ते असाए मोजज़ा गर भी उसी का है, ये इरफान सिद्दीकी का है। और काम उस शिकवे तन्हाई से क्या चलता है,
یہ عرفان صدیقی کا ہے۔ دوہا، دوہا ایک ہے ظفر گورکھپوری، ظفر گورکھپوری نے دوہا لکھا ہے، ظفر گورکھپوری۔ اور آپ کے سلیبس میں گیت جو ہے یہ ایک ہی ہے، جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، سلام مچھلی شہری نے لکھا ہے۔ جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، اس کو سلام مچھلی شہری نے لکھا ہے۔